Barcelona are literally balling under Xavi. Like, it feels so good to see Barcelona back. Or by back means I didn't meant to say कि यार they are the best team in Europe या फिर they are the best top 3 teams in Europe, लेकिन but they are actually improving. Or it feels so good as a football fan to see a club जैसे this season there has been many clubs like Arsenal or Barcelona be that they were struggling to even get into the top 10 in their respective leagues, but now they are actually in a comfortable position to secure a Champions League spot in their respective leagues. और बार्सिलोना में जब चावी आया था, बार्सिलोना फैंस वर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि यू नो बार्सिलोना का बहुत बड़ा लेजेंड है चावी एंड ही हैज़ सर्व्ड द क्लब अ लॉट और दैट वन ऑफ द ही हैज़ प्लेड इन द वन ऑफ द बेस्ट midfield trios of all time of Xavi, Iniesta and Sergio Busquets in their prime. So it was kind of you can say a destined move. और दुनिया में पता था कि when Xavi became manager one day he will actually manage Barcelona, और वो इसी साल हुआ because Barcelona were struggling under Koeman, और even if they were getting results तो उनको tactically जो है ना they were struggling to get something out of the team. और you talk about any player on the Barcelona जो चावी के अंडर पिच पे रहा है, you can not say कि that guy hasn't improved. You talk about Sergio Dest, you talk about Mingueza, you talk about Araujo, you talk about Pedri, Nico, Xavi, you talk about winter signings, you talk about any player on the pitch. They have immensely improved under Xavi, and Xavi has been the guy who has actually अपने प्लेयर्स को उसने एक फ्री रूम भी दी और उन प्लेयर्स को उनकी पोजीशंस पे और उनके रोल्स को वेल डिफाइन करा कि हाउ दे वुड हेल्प बार्सिलोना. और यू कैन एक्चुअली compare the play style of this Barcelona to the one Pep Guardiola managed क्योंकि Xavi was the captain of that team, maybe vice captain, I guess Puyol captain था उस टाइम पे. तो हाँ, तो ही न्यू कि हाउ पेप गार्डियोला मैनेज द टीम, और उसका जो स्टाइल है वो अल साद व्हेन ही यूज्ड टू कोच देम उसका स्टाइल प्रीटी मच सिमिलर था. इवन दो ही प्लेड विद द 3 एट द बैक देयर, लेकिन वहाँ पर जो कि अवेलेबल प्लेयर्स ऑफ कोर्स, बट स्टिल इन दिस सीजन एज वेल बार्सिलोना switches to 3 at the back sometimes. I would later discuss it in the tactical breakdown in this video. To talk about the actual form of Barcelona under Xavi, they have played 19 games, they have won 9, drawn 6 and lost only 4. लुक, अगर अभी किसी बंदे को दिखाओगे ना कि दीज आर द स्टैट्स अंडर चावी और मैं उसको बोलूँ कि यार चावी ने बार्सिलोना की बिल्कुल हालत बदल दी है, ही वुड से नहीं यार नॉर्मल से स्टैट्स हैं. ही हैज़ वन 9, ड्रॉन 6, लॉस्ट 4. सम नॉट कि हर मैच जीते हैं या फिर दे हैवंट लॉस्ट अ गेम, और जो है दे आर बॉलिंग. बट what I meant to say is that these results that Barcelona has got doesn't justify कि चावी ने कितना improve किया बार्सिलोना को on the pitch. He has literally changed the actual game plan. और जब एक मैनेजर टीम में आता है ना, आपके फैंस ऑफ कोर्स ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बट एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचें कि इट टेक्स अ मैनेजर हाफ अ सीजन टू एक्चुअली गेट यूज टू द टीम और उनको टैक्टिकली उस जो वो चाह रहे उस तरह उसको टैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके टीम में, बिकॉज यू हैव डिफरेंट प्लेयर्स, यू हैव डिफरेंट माइंड सेट्स ऑन द फील्ड, और उनको सबको एक चीज़ पे सेम पेज पे लाना इट टेक्स सम टाइम. लेकिन Xavi has proven itself in these 19 games. I can say Barcelona has improved a lot by means of improving on the pitch, off the pitch, and they look like they have that hunger to win in every game they play. Of course, they are out of the Champions League. They are playing the Europa League, but it seems that Europa League is a good testing ground for them, and for Xavi as well to make his team a better team in the next season कि वो Champions League football में compete कर सके और अच्छा perform कर सके. टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना's टैक्टिकल व्यू अंडर चावी, तो मैं इस जो वीडियो के अंदर बेसिकली जो मैं टैक्टिकली इस बार्सिलोना टीम को थोड़ा सा समराइज़ करूँगा द हाउ चावी हैज़ इम्प्लीमेंटेड हिज टैक्टिक्स और अपना गेम प्लान उसने किस तरह बार्सिलोना में जो है ना डेवलप किया. लुक, जब बार्सिलोना के पास बॉल नहीं होती, इफ़ यू टॉक अबाउट बार्सिलोना प्लेइंग ऑफ द बॉल, यू नो बार्सिलोना हैज़ प्रेस, उनकी ये जीन्स में कि दे प्रेस, ये हमेशा से दे प्ले, जिस मैनेजर के अंडर भी खेलें, इफ़ दैट मैनेजर डजंट इवन लाइक प्रेस, लेकिन वो प्लेयर्स प्रेस करते हैं, उनका अपना DNA, इट्स इन बार्सिलोना DNA टू प्रेस ऑफ द बॉल और ऑफ द बॉल टू बी एक्टिव. ठीक है, एंड इन दिस सीजन what Xavi has changed,
अटैक लाइन में जब बार्सिलोना इज हैज़ हैविंग नॉट हैविंग द बॉल और डिफरेंट टीम में बात हो रही, दे डू अ लॉट ऑफ ऑफेंसिव प्रेस, ठीक है। ऑफेंसिव बाय ऑफेंसिव प्रेस देयर विंगर्स टू प्रेस अ लॉट, ठीक है। उनका ओबामेयांग प्रेसेस अ लॉट, जिसकी वजह से दे गेट अ लॉट ऑफ बॉल्स, पासिंग लेंस कट डाउन, क्योंकि दूसरी टीम इफ दैट इजंट अ गुड टीम, इट्स मीडियोकर टीम, तो वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाते हैं व्हेन दे सी अ लॉट ऑफ ऑफेंसिव प्रेस, कंटिन्यूस ऑफेंसिव प्रेस, ठीक है। और जिसकी वजह से दे समटाइम डिस्पोजेस हो जाती है दूसरी टीम में। बार्सिलोना कैपिटलाइज ऑन, एंड यू हैव अडामा ट्राओरे, यू हैव ओबामेयांग, यू हैव फर्नान टोरेस, हु आर वेरी गुड इन द फाइनल टचेज ऑफ द बॉक्स, तो वो एक्चुअली उसको कैपिटलाइज करते हैं उसके ऊपर, एंड ठीक है। Another aspect of Barcelona, if you compare it to the Pep Guardiola time, it would be unfair to compare this Barcelona to Pep Guardiola time, but there are some similarity जो कि हम उस वाली बार्सिलोना से कंपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर लाइक दे आर वेरी मच क्विक ऑन पासिंग द बॉल, लाइक अपने पैर में ज़्यादा देर बॉल नहीं रखते, दे आर क्विक टू मनूवर द प्ले, और इसकी वजह से वो जो ऑपोजिशन टीम को जो दे हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि बार्सिलोना के पास इतने मोबिलिटी है मिडफील्ड में, दे हैव लाइट्स ऑफ पेड्री, दे हैव लाइट्स ऑफ फरैन टोरेस, हु आर वेरी मच मोबाइल व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग देयर पोजीशंस इन द अटैकिंग फील्ड, इन द फील्ड ऑफ कोर्स। तो जिसकी वजह से द ऑपोजिशन टीम नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, और उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं, दे आर प्लेयर्स लाइक पेड्री हु कैन कीप द बॉल ऑन देयर फील्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। Pedri is something else, man. Like, I don't think there's any young midfielder in the world who can compete with the ability that Pedri has. He is literally like, उसके ऐसा लगता है कि he has control, he has good balls on him. Like, what else do you want from a midfielder? He has good work rate, he is very much involved in the play. So what else do you want from your midfielder, and from a young midfielder who has just came on to the scene, और वो he has proved himself a lot, and it's a good sign for Barcelona and Xavi कि Pedri has been consistent and he has improved as well as performed for Barcelona when Barcelona has demanded him to perform. A third point जो मैंने नोटिस किया, that everyone is aware of the roles. You talk about Ferran Torres, you talk about Adama, you talk about Aubameyang, you talk any of the midfielders, Nico, Gavi, Pedri, Busquets, De Jong, everyone is aware of their roles. Like, De Jong को पता है कि Busquets को Xavi most probably second half में substitute करेगा, and I have to go on to the CDM position, और मुझे जो है ना अब जो है ना बार्सिलोना की जो CDM रोल को है, the pivot, I have to कवर द पिवट, और मुझे उस एरिया में जाके डिफेंस लाइन को भी बैक सपोर्ट करना है, और मुझे ऑफेंसिव रन्स भी मारने, क्योंकि यू हैव नीको, यू हैव गावी हु कैन कवर फ्रैंकी डियोंग वाली जो पिवट है उसको कवर कर सकते हैं। मैं फ्रैंकी डियोंग गोज ऑफेंसिव, क्योंकि ऑफेंसिवली डियोंग इज़ ब्रिलियंट, और इस सीजन स्पेशली डियोंग हैज़ बीन द MVP ऑफ बार्सिलोना इन माई ओपिनियन। ही हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ बार्सिलोना दिस सीजन, एंड यू कैन नॉट इवन डिनाई, बार्सिलोना फैंस भी खुद दे कैन नॉट डिनाई कि उससे बेहतर कोई प्लेयर रहा है बार्सी। और डियोंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ही रन्स ऑल ओवर द पिच, वो राइट से भी आता है, लेफ्ट भी बेस ऑफेंसिव रन्स, ही इज़ गुड इन ट्रैकिंग बैक, और वो विंग्स पे भी कई बार जाता है, ही रन्स इन दो स्पेसेस जो कि बनते हैं डिफेंडर्स के बीच में, एंड ही इज़ वेरी मच क्लिनिकल। अनदर इम्प्रूव प्लेयर अंडर चावी इज़ आरोहो, मैन दैट गाय, लाइक उसके जो अच्छे होने के साइन ना कोमैन वाली तौर जो एरा था उसके अंदर ही शुरू हो गए थे। लाइक ही इज़ फास्ट, ही इज़ गुड ऑन हिज टैकल्स, ही हैज़ दैट कंपोजर, ही डजंट गिव अवे अ लॉट ऑफ अननेसेसरी फाउल्स। सही है, वो टीम फाउल्स लेता है, बट ही इज़ंट वेरी मच काइंड ऑफ कि वो रिजिड और फ्रस्ट्रेटेड डिफेंडर नहीं है। ही नोज़ कि उसको किधर टैकल करना, ही नोज़ वेयर टू रन, और उसको उसकी वजह से उसके अच्छे फॉर्म की वजह से पीके को इतनी सपोर्ट मिली, क्योंकि पीके ऑफ कोर्स इज एजिंग, ही कांट रन अ लॉट, वो डिफेंडिंग में अच्छा कर सकते हैं बार्सिलोना के लिए, बट ही नीड्स समवन बिसाइड हिम जो कि उसको कवर दे सके, जो अगर जो 1-to-1 जो है चेसेस हो रही हैं, ही नीड्स दैट प्लेयर कि वो पीके के बराबर में एक प्लेयर हो जो कि पीके को ऑफर कर सके सम सपोर्ट, और Araujo has been that man, and I think he will serve Barcelona for many years, and he has that potential to be one of the best center backs in the world in the upcoming times. So Barcelona needs to use Araujo cleverly, or Xavi knows. I believe in Xavi कि Xavi would make the best out of Araujo.
because he has been brilliant this season. You talk about the winter signings of Aubameyang, Ferran Torres, Dani Alves, or Adama Traore. Man, what I see from the Barcelona कि जब ये signings की थी ना, you are signing a 33-34-year-old Aubameyang who isn't very much उसके पास इतना time नहीं to prove himself. He has been poor for Arsenal for past season and he's been scoring goals. So everybody doubted. You talk about Adama Traore, जिसने पूरे प्रीमियर लीग में ही जस्ट स्कोर्ड अ गोल इन अ होल सीजन. एक साल में उसने एक गोल स्कोर किया था. सब क्वेश्चन कर रहे थे कि हाउ वुड दे फिट इन बार्सिलोना. आप ऐसे प्लेयर्स क्यों लेके आ रहे हो दैट दे आर नॉट इवन परफॉर्मिंग सम गुड इन फॉर देयर प्रीवियस टीम्स. और डैनी एल्वेज, यू आर गेटिंग अ 39-year-old राइट बैक, वो जस्ट वॉट दैट लेगेसी और ये वो. बट मैन, डैनी एल्वेज ने अपने आप को he doesn't seem like a 39-year-old. He's running on the pitch. Adama Traore, man. Adama Wolves के अंदर what the difference is. Now I'm telling you the difference. जो आप बार्सिलोना फैंस को देखोगे अडामा यार कैसे परफॉर्म करे, पूछ देने को ऐसा लगा अडामा, हाउ इज अडामा एक्चुअली परफॉर्मिंग. यू लुक एट द टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. वुल्स के अंदर ही यूज्ड टू प्ले इन्वर्टेड विंगर. सो व्हाट इज एक्चुअली इन्वर्टेड विंगर? इन्वर्टेड विंगर एक वो जो वो बंदा होता है जो मिडफील्ड के स्पेसेस से ड्रिफ्ट करता है अंदर इन द बॉक्स एंड ही इज़ नॉट वेरी मच वाइड. सही है, वो ऐसे दिस इज़ द फुटबॉल फील्ड. इवन इफ ही इज़ रनिंग वो वाइड नहीं जाएगा, ही वुड गो सेंट्रल और वो सेंट्रली अपनी टीम को सपोर्ट करेगा. और वुल्स के टाइम पे अडामा ट्राओरे यूज्ड टू प्ले एज एन इन्वर्टेड विंगर. बट नाउ व्हाट चाबी हैज़ मेड, चाबी को पता है अडामा इज़ the fastest player you can say in the whole world. He would be very much good with 1v1s or even in 1v2s if he would outpace any player in the world, any defender in the world. So what Xavi did was कि उसका जो उन्होंने जो राइट बैक अपने दिए डेस्ट और ये अपना डैनी एल्वेज, उनको बोला कि आप थोड़ा सा पीछे रहो, you do good defensively. I would tell Adama Traore to go on the wide wing और वो वाइड जो है ना वाइड एक्सप्लॉइट करे, वाइड जाए और डिफेंडर्स को एक्सप्लॉइट करें. आप एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम देख लो, अडामा हैज़ बीन अ लॉट वाइड. यू टॉक अबाउट द वैलेंसिया, अडामा हैज़ बीन अ लॉट वाइड. और आई थिंक चाबी ने रियलाइज़ कर लिया कि अडामा प्लेज गुड ऑन द राइट और उसकी क्लिनिकल अपफ्रंट नहीं है. अडामा वुल्स के अंदर भी ही वॉजंट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द गोल, लेकिन ही इज़ वेरी मच गुड इन द वाइड स्पेसेस. और चाबी ने उसको उसी जगह पे खिलाया एंड ही हैज़ बीन अ सक्सेस on that position. Napoli वाली second leg में he was literally playing with the defenders. हरमूसो का करियर खत्म कर दिया एथलेटिको वाले गेम में उसने. He was literally उसको मौका ही नहीं दे रहा था हरमूसो को. हरमूसो इज़ not a very much fast center back. तो वो जब एथलेटिको 3 at the backs पे जा रही थी, हरमूसो अडामा ट्राओरे पे आ रहा था, बट अडामा वॉज लिटरली करियर ख़त्म कर दिया हरमूसो का, करियर ख़त्म. ही वॉज दैट गुड अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड एंड ही हैज़ गुड क्रॉसेज ऑन हिम. उसकी वजह से गावी का गोल भी हुआ था, वो हेडेड गोल. तो अडामा की जो और एक और चीज़ दैट अडामा इज़ इम्प्रूव्ड इन दैट इज़ फाइनल डिसीजंस. विद हिज फाइनल डिसीजंस ही हैज़ बीन ब्रिलियंट. ही हैज़ बीन लिटरली ब्रिलियंट. वुल्फ वाले टाइम पे जब वो फाइनल फेज में जाता था उसका नहीं पता था, या तो ही वुड शूट या तो ही वुड डू एन अननेसेसरी पास. लेकिन यहाँ पे आके ही हैज़ बीन क्लिनिकल in the box. You talk about Ferran Torres, man. Some of the Barcelona fans will say उसने chances miss किए, he's in clinical up front, but man, Ferran Torres को जो रोल दिया जा रहा है ना बार्सिलोना में, वो है इन्वर्टेड विंगर. अडामा को दिया वाइड, इसको दिया इन्वर्टेड विंगर्स. अंदर आओ कटो शूट करो, अपने लेफ्ट बैक को ओवरलैप करा के बॉल. और जॉर्डी एल्बा के साथ उसकी पेयरिंग हैज़ बीन इतनी सक्सेसफुल क्योंकि उसका रोल ही यही है कि वो इन्वर्टेड रन्स मारे और अगर स्पेस है जॉर्डी एल्बा को पास करे, जॉर्डी एल्बा फिर अंदर क्रॉस करे. जॉर्डी एल्बा के पास इतने ओवरलैप्स के चांस हुए हैं, इतने. टॉकिंग अबाउट Aubameyang हैज़ बीन क्लिनिकल अप फ्रंट. ही इज़ स्कोरिंग गोल्स लाइक क्रेजी. उसको जो मौका मिल रहा है ही इज़ कन्वर्टिंग इनटू अ गोल एंड दैट कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस चाबी ने दिया है. चाबी हैज़ टोल्ड हिम कि यार यू आर द मेन मैन अप फ्रंट, यू हैव गुड फिनिशिंग ऑन यू कैन स्कोर एंड यू विल स्कोर अ गोल. और जिसकी वजह से Aubameyang हैज़ बीन क्लिनिकल अप फ्रंट और उसको जो मौका मिल रहा है ही इज़ गोइंग फॉर अ गोल एंड ही इज़ बीन गुड टच.
और उसकी जो पोजिशन है अप फ्रंट हैज़ बीन अ लॉट बेटर व्हेन यू टॉक अबाउट हिम इन आर्सेनल, क्योंकि इधर वो मेन मैन है, ही इज़ द स्ट्राइकर, उसको ड्रॉप नहीं करना। यू हैव प्लेड लाइक फेरन टोरेस हु वुड ड्रॉप, तो ऑबामेयांग को इतनी नीड नहीं होती कि वो ड्रॉप करे, इतना ड्रॉप करे इन द लोअर हाफ. But he is clinical up front. Xavi has given him every bit of confidence that he wants. Or concluding that, I would say it's still early to for Barcelona to actually कि वो one of the biggest threats in European football बन जाए. But Xavi has got this full season. He has got the other season. He can prove everyone wrong. And I think I'm a Madrid fan, but I'm seeing Barcelona makes me so happy क्योंकि उन्होंने इतना improve किया है. और under Xavi, I respect Xavi a lot. He has been one of the greatest midfielders of all time. और Xavi के under Barcelona is something else, and they look really scary, man. So, Wase signing off.